آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے۔ پہلے ہماری جو میٹنگ تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی 25 اگست کو، اور اس میٹنگ کے اندر ہم نے جو چند موضوعات تھے زیر غور آئے تھے، اس میں ایک تو پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں، جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جو بجلی کے بل ہیں، جو عوام پر بوجھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کے حوالے سے، اور پھر پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے بالخصوص جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پر لوگوں کی جو حالت ہے، جو پریشانی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے فوری طور پر چودھری منظور صاحب کو ایز فوکل پرسن مقرر کیا کہ وہ آئندہ آنے والی کمیٹی میٹنگ تک پوری رپورٹ اپنی وزٹس کے بعد پیش کریں اور رابطہ کریں اس کیئر ٹیکر حکومت کے ساتھ جو کہ پنجاب میں ہے، کہ وہ ان لوگوں کو فوری طور پر مدد فراہم کر سکے۔ آج ہماری جو میٹنگ ہے وہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ پچھلی میٹنگ میں یہ بھی طے پایا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس پر زیادہ غور اس وقت کیا جائے گا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملے گا، ان سے انگیج کرے گا، اور پیپلز پارٹی کی جو رائے ہے سی سی کی طرف سے جو آئینی اور قانونی تمام پہلو کو دیکھ کر ہم نے قائم کی تھی، اس کو ان کے ساتھ ڈسکس کرے گی، اور ان کا جو موقف ہوگا وہ پھر ہم اپنی اگلی سی سی میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو لاہور میں ہو رہی ہے، یہ اسی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی سمجھے کہ اس کا ایک تسلسل ہے۔ جو الیکشن کا موضوع ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کرنا ہی تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے۔ اب الیکشن کے اس موضوع کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی بھی ایک کوشش سامنے آئی ہے، جو کہ صدر کا لیٹر آیا ہے اور پھر اس کے بعد مختلف آراء آئی ہیں، تو ہم نے وہ موضوع بھی یہاں ڈسکس کرنا تھا۔ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، اور پھر آگے کا جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا، اور اس پوری صورتحال کے اندر جو اس وقت سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی پیچیدہ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ابھی اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اراکین نے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھ دیا ہے، لیکن ابھی بھی کافی سارے اراکین ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے، اور وہ بات تمام تر جب پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی نتیجہ یا کوئی فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہوگی، کیونکہ آراء ابھی آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیسیشن میکنگ فورم ہے، ہماری پارٹی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ کارکن کی امنگوں سے لے کر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فورم تک ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جہاں اراکین اپنی رائے دیتے ہیں، تجویز پیش کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کی روشنی میں فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو فی الوقت ہمارے حتمی فیصلے آنے ہیں، اور آپ سے گزارش ہوگی کہ کل بھی تکلیف کرنی پڑے گی آپ کو جب ہم ایک مکمل مفصل پریس کانفرنس کریں گے، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اختتام پر جو ہمارے فیصلے ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ ضرور کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ صدر نے جو خط لکھا ہے، شادیہ بی بی صدر نے جو خط لکھا ہے وہ تو کم و بیش آپ کے موقف کو ہی دہرایا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونا چاہیے، انہوں نے تجویز کیا ہے، تو آپ اسی کی کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس خط سے کنفیوز کرنے کی کوشش کی؟ فاروقی صاحب، بحث تو یہی ہے نا کہ آیا صدر پاکستان ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی اناؤنس کوئی بھی کرے، ہمیں تو الیکشن چاہیے جلد از جلد، ہمیں تو پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہے، ہمیں تو آئین میں دیے گئے جو پروویژنز ہیں، آرٹیکلز ہیں، ان کی پاسداری کرنی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنی اس آئینی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خط کا متن کیا تھا، اب تو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ خط صحیح تھا یا غلط تھا۔ پھر یہ بتائیں کہ جس شخص نے وہ خط لکھا کیا اس کے پاس اختیار ہے ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کا یا نہیں ہے۔ اب یہ ایک دیکھیے، یا تو بات اس طرف کی ہو یا اس طرف کی، یہ جو بیچ کی گیم کھیلتے ہیں نا صدر پاکستان عارف الوی صاحب، وہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا
کہ وہ بل آیا تھا, انہوں نے کہا جی امینڈمنٹس واپس کر دو اور لکھا کچھ نہیں, پھر کہنے لگے کہ جی مجھے تو علم ہی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی, ایسے بات نہیں ہوتی. اس پر بات چیت ہو رہی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اراکین نے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھ دیا ہے, لیکن ابھی بھی کافی سارے اراکین ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے, اور وہ بات تمام تر جب پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی نتیجہ یا کوئی فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہوگی, کیونکہ آرا ابھی آ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیسیشن میکنگ فورم ہے. ہماری پارٹی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ کارکن کی امنگوں سے لے کر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فورم تک ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے, اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جہاں اراکین اپنی رائے دیتے ہیں, تجویز پیش کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر اس کی روشنی میں فیصلے لیے جاتے ہیں. تو فی الوقت ہمارے حتمی فیصلے آنے ہیں, اور آپ سے گزارش ہوگی کہ کل بھی تکلیف کرنی پڑے گی آپ کو جب ہم ایک مکمل مفصل پریس کانفرنس کریں گے, اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اختتام پر جو ہمارے فیصلے ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ ضرور کریں گے. اچھا یہ بتائیں, صدر نے جو خط لکھا ہے شازیہ بی بی, صدر نے جو خط لکھا ہے وہ تو کم و بیش آپ کے موقف کو ہی دہرایا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونا چاہیے, انہوں نے تجویز کیا ہے. تو آپ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس خط سے کنفیوز کرنے کی کوشش کی. فاروقی صاحب, بحث تو یہی ہے نا کہ آیا صدر پاکستان ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا, ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی اناؤنس کوئی بھی کرے, ہمیں تو الیکشن چاہیے جلد از جلد, ہمیں تو پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہے, ہمیں تو آئین میں دیے گئے جو پروویژنز ہیں, آرٹیکلز ہیں, ان کی پاسداری کرنی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنی اس آئینی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خط کا متن کیا تھا, اب تو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ خط صحیح تھا یا غلط تھا. پھر یہ بتائیں کہ جس شخص نے وہ خط لکھا کیا اس کے پاس اختیار ہے ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کا یا نہیں ہے. اب یہ ایک دیکھیے, یا تو بات اس طرف کی ہو یا اس طرف کی, یہ جو بیچ کی گیم کھیلتے ہیں نا صدر پاکستان عارف الوی صاحب, وہ بڑی عجیب ہوتی ہے. وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بل آیا تھا, انہوں نے کہا جی امینڈمنٹس واپس کر دو اور لکھا کچھ نہیں, پھر کہنے لگے کہ جی مجھے تو علم ہی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی, ایسے بات نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے مکمل یا آئینی تقاضوں پہ یا قانونی تقاضوں پہ. آئین کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اس وقت کی آراء کے مطابق یہ جو چیز سامنے آئی ہے اراکین کی گفتگو سے اور قانونی ہمارے جو ماہرین ہیں ان کی بات چیت سے, کہ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن کل چونکہ آپ کے ساتھ تفصیلاً بات ہوگی تو ہم آپ کو اس پر اپنا جو ٹیکنیکل اور مفصل جواب ہے اور اعتراض ہے اس سے ضرور آگاہ کریں گے. آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ معیشت زیادہ اہم ہے الیکشن سے, اور بلاول صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے. آج سی کی میٹنگ میں زیادہ کس کی طرف رجحان تھا, آصف زرداری صاحب کے موقف کی تائید کی گئی یا بلاول صاحب کے موقف کی تائید ہوئی آج سی کی کمیٹی میں؟ دیکھیں, یہاں پر اس طرح کا کوئی کھیل نہیں کھیلا جاتا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کارکن کو بھی اپنی رائے دینے کا حق ہے, اور جو ہمارے آفس بیئررز ہیں, جو لیڈرشپ پوزیشنز پہ فائز ہیں لوگ, ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ جو فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہوتا ہے وہی فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو پیشن گوئیاں تھیں کہ زرداری صاحب سی سی میں ہیں یا بلاول صاحب کون ہیں, تو دونوں حضرات سی سی میں موجود ہیں, اور پچھلی سی سی کی طرح اس سی سی کی بھی صدارت دونوں ہمارے معزز لیڈران کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ صدر مملکت درمیان کی گیم کھیل رہے ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے, اس میں پیپلز پارٹی کا بھی کردار ہے اختیارات دینے میں. دوسری جانب اگر صدر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے,
और सदर साहब को भी डेट की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। तो कहीं आप लोग भी दरमियान में एक तरफ 90 रोज का ये मुतालबा हमने 25 अगस्त की मीटिंग में आप लोगों से, आपकी तमाम जो दीगर साथी हैं कराची में, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने बाकायदा इस बात को शेयर किया कि जी हमारी सीसी के अंदर जो कानूनी राय आई है और जो हमारे अरकान ने बात की है, उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी है। तो ये हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था, और आज अगर कोई इस पे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करे भी तो हमें उसको ये जवाब जरूर देना मेरा फर्ज है कि जी डेट कौन अनाउंस करता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस इस वक्त है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। ये गैर यकीनी की सूरत हाल, इससे मुल्क निकल सके, हमारे लिए एक वे फॉरवर्ड नजर आए। मईशत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और लोगों की राय भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप इधर से ले लेते ना, इधर एक कर लेते हैं। खेल रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि मिशन जरूरी है, बिलावल साहब कहते हैं हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। इस इलेक्शन एक्ट के ऊपर आपने वोट किया, फिर आपके मीर बुखारी साहब कहते हैं सदर को इख्तियार है। इस हवाले से वही डबल गेम आप कर रहे हैं, अवामी सतह पे कोई और है, और अंदर खाते मुस्लिम लीग नून का भी ये इल्जाम है कि आपको पता था इलेक्शन 90 रोज से आगे जाएंगे और आपने उसमें वोट भी किया था। देखिए, मैं इस बहस में नहीं जाती हूँ। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है, वो बात सेंसस की पूरी कहानी सीसीआई की शुरू करेंगे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर उस सेंसस सीसीआई की मीटिंग के अंदर अगर सेंसस को लेकर कोई बड़ा फैसला आता जिससे कि इलेक्शन अफेक्ट होता, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती मेरे भाई। एक सेकेंड, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती। और थोड़ी बहुत मैंने आइन की किताब पढ़ी है, और जब वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती तो आर्टिकल 51 में तब्दीली आती, और अगर आर्टिकल 51 में तब्दीली आती तो आईनी बहरान आता, और अगर आईनी बहरान आता तो आप सबको पता चल जाता। लेकिन चूंकि कोई आईनी बहरान नहीं आया, और आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दानिस्त में ये मुद्दा अहम है कि डीलिमिटेशन करानी है, तो हम उसमें ये एतराज़ अब नहीं, उनके साथ जिद नहीं लगा रहे, हम कोई जिद नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन, बल्कि कल ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो अभी सरसरी बातें हैं कि अगर डीलिमिटेशन भी ज़रूरी है, जो कि हम समझते हैं कि आईनी प्रोविजंस क्लियर है, लेकिन अगर आप फिर भी बतौर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी जो कि इलेक्शन कराने की है, शफाफ इलेक्शन कराने की है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की है, उस एक्सरसाइज को मुकम्मल करते हैं डीलिमिटेशन करा के, और समझते हैं कि ऐसे ही होगा, तो आप बेशक करें। और हमारे फैसल करीम कुंडी साहब उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिले। ये हमारी ही उस डायलॉग और उनके साथ एक गुफ्तु शुनीद और एंगेजमेंट का नतीजा था कि डीलिमिटेशन की वो जो एक लंबी डेट्स दी गई थी, उसके पीरियड को 2 हफ्ता कम किया गया। तो हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोशिश ये की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराएं। वायलेशन में हम जितना जाएंगे आइन के, ये गलत प्रेसिडेंट सेट होता जाएगा। क्या लतीफ खोसे साहब को इजलास में बुलाया गया और साथ आपने उसको नोटिस भी वो जारी कर दिया, और इख्तियार ऐसे सब शरीक हुए हैं कि नहीं? आप जवाब दे दें नोटिस का, आ जाए। बिल्कुल जी, लतीफ़ खोसा साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है, जिस पे उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। एतजाज़ साहब को भी दावत की। लतीफ़ खोसा साहब को हमने पार्टी से निकाला नहीं, शोकाज नोटिस उनसे जवाब तलब की गई है। आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके फेयरवेल हो रहे हैं, दोनों हमारे वकला साहबान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी, वो नहीं आ सके। पिछली मीटिंग में जो है वो हमारे एतजाज़ साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने लीगल हमारे साथ अपडेट भी किया हमें, और उसके साथ जो है उन्होंने हमें जो है अपडेट भी किया। और आज दोनों जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो जब वो लतीफ़ खोसा साहब इसका रिप्लाई करेंगे शो का नोटिस का, उसके बाद ही कोई चीज़ होगी। आज की दावत थी उन्हें वैसे? बिल्कुल दावत। अभी जो है वो आज की मीटिंग के अंदर जो है वो पंजाब की आपकी जो है वो ओहदेदारान मौजूद थे, और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो
14 मई वाले इलेक्शन थे तब भी हम नून लीग को कहते रहे कि इलेक्शन करवा दो, उन्हें अपने केसेस खत्म करवाने की पड़ी। आप इस मौके पर क्या उनकी तायीद करती हैं? क्या ऐसे फैसले ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ खड़े हैं टिकट होल्डर, इनके हाथ में भी टिकट था पंजाब के हवाले से। हमारी अलबत्ता देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होने 90 रोज़ में तो वो ना हो। हमने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही रहे कि इलेक्शन जो है वो हम आहंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए ताकि किसी को इलेक्शन से कोई एतराज़ ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही एक अमल था, उन्हीं की कोशिश थी, जिन्होंने उस वक्त की जो यूनिटी गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा होकर भी अपनी जमात की एक कमेटी बनाई और उन्होंने अपने लोगों को तमाम जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करने का कहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है, कोई जिद ना करे, ये हम आएंगी के साथ हो। और आपको पता है कि फिर उस सारे डायलॉग के नतीजे में, जिसके अंदर अपोजिशन जमातें भी थी, जिसके अंदर उस वक्त पीटीआई भी शामिल थी, ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो एक रोज़ होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे तो ऐन उस वक्त पीटीआई की जानिब से मैं ना मानूं की सियासत शुरू हो गई और उनका जो ज़िद्दी लीडर है जिसने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार, नफरत और तकसीम फैलाई है, उसने कहा जी मैं ये नहीं मानूंगा। तो अब जब कोई बंदा नहीं मानता तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ। अच्छा, अगर उस वक्त नहीं हुआ तो चले दीगर लोगों को राजी कर लें, जिसमें नून लीग, मौलाना साहब और भी लोग हों। तो सब ने मिलकर ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द हों और 1 तारीख को इलेक्शन किए जाएं। आज की भी हुकूमत शायद यही बात कर रही है कि पूरे मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। हमारी कोशिशों के नतीजे में और डायलॉग के नतीजे में यही बात हुई। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी सीरियस बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं किसी एक जमात की इस तनकीद पर रिएक्ट करूँ कि जी शुगर का क्राइसिस पीपल्स पार्टी का जिम्मा था, तो फिर ये इसलिए नामुनासिब होगा कि अगर मैं फिर खजाने की बात पूछने आ जाऊं, मैं अगर स्मगलिंग के ऊपर बात पूछूं, मैं अगर सिक्योरिटी पे पूछूं, मैं अगर एनर्जी पे पूछूं, तो ये किसके पास था। तो मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं अपने चेयरमैन की उस ख्वाहिश और उस विजन के ऊपर चल रही हूँ कि जी इस मुल्क में हर एक को इस मुल्क के लिए काम करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है और हम सबको डालना है। नून लीग को सहूलतकारी की जा रही है निगरान हुकूमत के जरिए। पंजाब के रहनुमाओं का आए रोज यही इल्जाम है कि निगरान हुकूमत वफाक में और जो पंजाब में वो सहूलतकारी कर रहे हैं। इस पे फैसल साहब जवाब देंगे और आपने भी फैसल साहब से थोड़ा सा देखिए, आपने जो बात की है कि हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफवुज़ात की हैं। देखें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। देखिए, इस वक्त 4 सूबों में निगरान हुकूमत है और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई फंड्स नहीं रोके गए। वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर भर्ती भी हो रही है। हमारे हम जो कि नहीं हो सकती, लेकिन सिंध में पाबंदी है, बाकी सूबों में है। हमारे पार्टी के दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे, वो अभी भी उन्होंने हमें कुछ चीज़ों पे ब्रीफिंग दी है, कुछ पे देनी है। जैसी ब्रीफिंग सारी मुकम्मल होती है, कल आपको इस पे इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल जो है उस पे आप अपडेट करेंगे। साहब मेरी गुजारिश आपसे, गुजारिश मेरी आपसे, आपने वादा किया था कि मैं खवातीन से ले पीटीआई के इस मुतालबे को रखूंगा कि इलेक्शन के सिलसिले में इत्तेहाद होना चाहिए जमातों के दरमियान। आज आपने ये तजवीज़ में रखी है कि पीटीआई से इत्तेहाद हो जाए। बेटा पूछे सवाल। देखिए मेरी बहन, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, फ़लसफ़ा कमज़ोर नहीं होता, आइडियोलॉजी कमज़ोर नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। हाँ, ये ज़रूर है
कि पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े पर चलने वालों को ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और अगर हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाएंगी और हमें जो पंजाब के साथी बता रहे हैं यहाँ हो रहा है, या जो हमें केपी के साथी बता रहे हैं कि वहाँ हो रहा है, और फिर सिंध की भी आपको अभी कुंडी साहब ने बात की, तो ये जब तमाम जो ज़्यादतियाँ पीपल्स पार्टी के साथ दिख रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं और नज़र आ रही है, ये ख़त्म होंगी तो फिर अपने फ़लसफ़े पर बात होगी ना, फिर मैनिफेस्टो पे बात होगी। मैं एक कुंडी साहब की बात को बढ़ाते, भाई आपने किया सवाल, एक सेकंड पे, मैं सिंध के हवाले से, क्योंकि मैं अभी अपने हलके में थी, आप यकीन करें कि वहाँ पर बच्चियों का स्कूल बन रहा था जिसका काम रोक दिया गया। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल बनाया कि जी जो तरक्की याफ्ती काम हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सैलाब ने मुतासिर किया लोगों को, फिर साउथ पंजाब, केपी का कुछ एरिया, गिलगित का कुछ एरिया, लेकिन आप लोग गवाह हैं कि आपने खुद देखा कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन सिंध की अफेक्ट हुई है। पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। पूरी दुनिया ने हमारे साथ आगे आकर इजहार यकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल आया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं किस को इस तरफ उनकी अटेंशन उन्होंने राग़िब की, बावजूद इसके कि दुनिया के और भी मसले चल रहे थे, लेकिन हमारा मसला हमारे लिए सबसे बड़ा था। और आज अपने ही लोग, अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही सूबे में बैठे लोग, अपने ही सूबे के लोगों की तरक्की को रोक रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है। ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, उन्होंने अभी हमें कह दिया है कि जी 15 अगस्त तक हुआ होगा तो आप करा लें। मतलब ये हंसी की बात है ना कि ये पिछली गवर्नमेंट की मंजूर करदा है। केयर टेकर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के फैसलों को अंडू कैसे कर सकती है? ये तो आप लोग भी माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं कि ये रिवर्स कैसे हो सकती है बातें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है इन चीजों पर? और ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बड़ी एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग, कानूनी तौर पे वो नहीं करा सकते। शायद कोई कानून उनके पास हो जो वो जिसको देख के काम कर रहे हो, लेकिन जो कवानीन हमने पढ़े हैं उसमें तो हमारे अरकान ने इस बात का तस्करा किया है और बड़ा जोर शोर से किया है कि जी ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए, इसे चलने दे। पीपल्स पार्टी कभी एतराज नहीं करती। अगर कानून वायलेट होता है तो करते हैं, आइन वायलेट होता है तो करते हैं, अदरवाइज हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी किसने इस मुल्क के अंदर? सबसे ज्यादा लाशें पीपल्स पार्टी ने उठाई हैं। पंजाब के मामले में एक सेकंड नहीं, मैं पंजाब के मामले में आपने खास तौर पे एक सवाल किया था कि पंजाब में आपका रिवाइवल कैसे होगा। पंजाब ने तारीख में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन देखी, ऑपोजिशन बर्दाश्त की, ऑपोजिशन के सामने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला कारकुन बिल्कुल डट के खड़ा रहा। लेकिन ये जो ऑपोजिशन जो इस वक्त की हमें सहनी पड़ रही है, आप 100% आपकी जो फीलिंग है वो बजाय हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। इतनी मुश्किलात नून लीग के होते हुए नहीं थी, इतनी मुश्किलात हमारी PTI के होते हुए भी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैम शादिया ने जिस तरह से कहा है कि जी नजरिया उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकता। ना ये ख़त्म हुआ, ना इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म होगा। आप देखिएगा कि जिस दिन ये लीडरशिप पंजाब में भले पेशावर से लेके इस तरफ को एंटर करे या साउथ से लेके लाहौर की तरफ एंटर करे आपको फिर पीपल्स पार्टी, आपने लॉन्ग मार्च में नहीं देखा था कि पंजाब की आवाम का क्या रद्द अमल था अपने चेयरमैन को देख के, क्या बिहेवियर था, क्या जोश और जज्बा था। तो वही जज्बा आज भी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के इलेक्शन, अगर हम मजबूत ना होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मुतालबा ना कर रही होती कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए। आपने पूछ लिया है ना, इनने नहीं पूछा, इन्होंने नहीं पूछा। अच्छा, पार्टी ये समझती है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस निगरान सेटअप को प्रोग्राम करना चाहते हैं या इलेक्शन को मुकम्मल इल्तवा में डालना चाहते हैं,
क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स एक्टिव हैं और क्या कोई पॉलिटिकल फोर्सेस उनके साथ हैं? अगर कुछ ऐसे रिजर्वेशंस हैं तो क्या वो मीटिंग में डिस्कस हुई? जी डिस्कस हुए और कल हम उसमें तफसीली बताएंगे आपको। ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और भी हो रही हैं, हम कल जरूर आपको लास्ट बताएंगे। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कल तफसीली नगरान हुकूमत की जो गैर जनमदारी है क्योंकि इनकी कबीना में मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता अरकान की ज़ाती मुलाजमों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरह फवाद की नई इंडक्शन हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इन सब चीज़ों पे तफसील से जो है हमारी बातचीत शुरू है, आज भी हुई है, कल भी होगी, और कल जो हमारी तफसीली ब्रीफिंग होगी उसमें इसका जिक्र करिए। आपने जो सवाल किया पार्टी के हवाले से, अभी तक हमें ऑफिशियली कोई भी ऐसी दावत नहीं आई। जब ऑफिशियली दावत आएगी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमेशा रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, हम इत्तेहाद की पॉलिटिक्स करते हैं। जब भी कोई दावत आएगी हमारी पार्टी लीडरशिप उसके ऊपर देखेगी और उसके बाद फिर फैसला करेगी क्या होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।